Good evening, everyone. We'll wait for some time. Some more students may join. Okay, so I would like to know that till where the sir has completed, what all topics. I think so. Trigonometry we are studying. Okay, so we'll start. More students will join within few moments. This time is already 4:10. Okay, so good evening, everyone. So this is Abhishek Asthana. I'll just brief myself in 2 minutes because I think so. First time I'm taking your class. I think so. Your Avnish sir is out of station, so he has some internet issue. So that's how he's not able to take that. So for this week, I'll be taking your class. I hope so. My voice is audible. Just let me know in the comment section whether it is audible and visible both. Okay, thank you, Rudraksh. So myself, Abhishek Asthana. I have completed my engineering from HBTA Kanpur. So there is a famous college in Kanpur, HBTA Kanpur. So physics वाला आप लोगों ने सुना होगा शायद है ना, अलग पांडे, same college. So then after that, I got a placement as a software engineer in Noida. One MNC is there, Nucleus Software. So there I worked for 1 year, but actually my interest was in teaching. So there I found that I should be in the field of teaching. So I should train in the field of teaching. So currently from last 5 years, I have been teaching students mathematics of all different grades, 9, 10th, 11th, 12th, and as well as for JEE, your senior batch, 12th. So for them, I am taking some classes for JEE. Currently, we are in Etawah. There's a place in Uttar Pradesh. So there we have a coaching with the name Chaitanya's Education. So you have there as Chaitanya's Tutorial. We have as Chaitanya's Education. So it is a same coaching, same branch. So from there we have in UP also. So as well as I'm also selected in an academy. So there also I take some classes. So we'll try to study that trigonometry. I think so. I hope so. Everyone is comfortable with Hindi. Is there anyone who don't know Hindi at all? बिल्कुल भी नहीं जमता है.
I think so everyone understands Hindi because well I was taking classes so that I took in Hindi. Okay. तो ट्रिग्नोमेट्री में तो ये मुझे बताइए कि कहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना? आई थिंक सो लास्ट क्लास में मैंने रिकॉर्डिंग देखा था, शायद सर ने आपको पढ़ाया था कि हाउ टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम, है ना? 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, all those formulas ये पढ़ चुके हैं ना आप लोग? हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज. ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज में भी कई वैरायटी है. एक तो कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम और कन्वर्टिंग सम इनटू प्रोडक्ट. तो वो सारी चीजें आप कितना पढ़ चुके हैं, और या फिर आपको अगर आइडिया हो कि नेक्स्ट क्या पढ़ाना है, या फिर आपको एनसीईआरटी में कौन सी एक्सरसाइज तक लगवा दिया गया है, मुझे ये बता दीजिए ताकि उसके आगे फिर मैं थोड़ा गेस कर पाऊँ कि हमें क्या पढ़ना है. एनसीईआरटी एनीवन? एनसीईआरटी की कौन सी एक्सरसाइज आप लोगों की हो गई है? एनसीईआरटी लगाया होगा, नहीं लगाया? एनसीईआरटी नहीं लगाते हमसे बच्चों के लिए. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो बताइए भाई, लगाया नहीं लगाया? एनसीईआरटी सम क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व क्लास में सर ने करवाया या फिर एज अ होमवर्क? यस और नो में रिप्लाई करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं. सोच रहे हैं? नो सर, अभी एनसीईआरटी नहीं लगाया. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. तो आप लोगों को होमवर्क वगैरह कहाँ से मिलता है? आरडी शर्मा लगाते हैं? आरडी शर्मा या फिर कोई और बुक, आर एस अग्रवाल, ऐसा कुछ, या फिर सर ही होमवर्क देते हैं? अच्छा, सर ने शीट प्रिपेयर किया, वहां से क्वेश्चन देते हैं. चलिए ठीक है. तो फिर देखिए, फिर हम कुछ पढ़ते हैं, है ना? कुछ चीजें जो कुछ आप पढ़ चुके हो तो मुझे आप बता सकते हैं कि सर ये पढ़ चुके हैं. ठीक है, ओके. जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Is it visible? White blackboard दिख रहा है? बहुत बढ़िया. चलिए ठीक है. तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने जब स्टार्ट किया होगा पढ़ना, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या एक्चुअल में? दिस इज अ मैथमेटिक्स ऑफ एंगल, है ना? एंगल से रिलेटेड जितना भी कैलकुलेशन है, एवरीथिंग कैन बी मेड वेरी इजियर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, है ना? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके एंगल का जितना भी कैलकुलेशन है वो सारी चीजें कैलकुलेशंस में क्या हो जाती है, आसान हो जाती है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? प्योरली एंगल पर बेस्ड है. तो आपके जो 6 फंक्शन है बेसिक, है ना? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक्स, तो इन्हीं से रिलेट करके सारे फॉर्मूले और बहुत सारी चीजें आपने बनाई होंगी, है ना? तो अभी आपने जो पढ़ा होगा वो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा होगा एंगल्स के बारे में. जस्ट मैं एक ब्रीफ रिवीजन दे रहा हूँ ताकि पता चले कि कितना पढ़ लिया. तो आपने सबसे पहले एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा. तो एंगल का मेजरमेंट करने के 2 तरीके, है ना? एक तो डिग्री, जो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, डिग्री में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हमने बनाया भी है. 30 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, है ना? 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, है ना? और उससे भी ऊपर होता है. तो ये डिग्री वाले एंगल हो गए, है ना? तो और उसके बाद आपने पढ़ा होगा रेडियन, है ना? रेडियन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो हर एक का अपना अलग अलग यूज है. जैसे डिग्री है तो कहीं कहीं पर एंगल्स को डिग्री के टर्म्स में मेजर करते हैं, कहीं कहीं पर है रेडियन. जैसे डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस को, कुछ डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, कुछ डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, कुछ डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं. अब अगर 2 सिटीज के बीच के डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, है ना? क्योंकि सेंटीमीटर में बहुत ही बड़ा नंबर आएगा. तो हर एक यूनिट के अपने अलग अलग फायदे हैं. कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि सर डिस्टेंस मेजर करने के लिए इतनी सारी यूनिट्स क्यों दी गई, किलोमीटर, हेक्टामीटर, है ना? हेक्टो और डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर,
और भी है आपका लाइट ईयर्स हो गया वो सारी। तो उसी तरह से एंगल्स में भी उसके एडवांटेज है। रेडियन जो एंगल होता है उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में बनाया जा सकता है आसानी से, है ना। तो इसीलिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं 11th 12th मैथमेटिक्स में और हर जगह पर। तो इसीलिए सारे एंगल्स आपके रेडियन में भी आते हैं। अभी भी आप फिजिक्स में भी जितनी सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, जो भी सब पढ़ेंगे आप, सब जगह पर एंगल्स जो आएंगे वो किस में आएंगे, आपके रेडियन में आएंगे। तो पाई के टर्म्स में आते हैं। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। उसके बाद जो आती है चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, है ना। तो ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, तो श्योरली आपने पढ़ा है। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूले एकदम ऐसे याद होने चाहिए ना, आपसे पूछा जाए तो एकदम बिना कुछ सोचे निकलना चाहिए। तो ये सबसे पहला टॉपिक रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड क्यों? क्योंकि इस साइन के अंदर का जो एंगल है, साइन ए प्लस बी जब आप लिखते हो, तो इसके अंदर का एंगल जो है वो दो एंगल को सम करके बनाया गया है, कंपाउंड करके बनाया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, है ना, इनके एंगल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, tan 15 डिग्री और tan cot 15 डिग्री, इस तरह से बहुत सारी चीजें 15 डिग्री और 75 डिग्री के एंगल्स को कैलकुलेट करके आपने किया होगा, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि प्रोडक्ट इनटू सम, प्रोडक्ट इनटू सम, ये वाले फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में एक फॉर्मूला ये आता है, तो इसमें इस तरह के फॉर्मूले हैं, 2 sin a cos b, तो आई होप सो ये आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, एम आई करेक्ट? ये लास्ट क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने। प्रोडक्ट को सम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर जिस नाम से भी आपने पढ़ा हो, ये पढ़ चुके हैं ना, बताते जाइए जल्दी जल्दी मुझे। ओके, हाँ, तो ये फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो आते हैं सम इनटू प्रोडक्ट, ये पढ़ा है क्या? सम इनटू प्रोडक्ट मतलब ऐसा मान लीजिए sin x प्लस sin y इज इक्वल्स टू 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। बताइए, ये पढ़ा है? सम को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को सम में, सम को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पढ़ा है? देखिए कॉपी खोल के, ये नहीं पढ़ा है ना, चलिए ठीक है, ओके। तो ये हम पढ़ने वाले एक चीज आज, ठीक है, और इस पर हम क्वेश्चंस वगैरह भी करने वाले हैं, एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग आल्सो। Apart from this, I think so you have studied range type of questions. Range निकाला होगा शायद, a cos theta plus b sin theta. The range of this is from root minus root of a square plus b square. ये पढ़ा है? Root of a square plus b square. हाँ, तो ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इस पर भी आर डी शर्मा में क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में आते हैं, सम को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ग्राफ वगैरह आप पढ़ चुके होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में ये 2 sin a cos b cos a sin b और उस पर कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड है ना, कुछ और मैं फॉर्मूले वगैरह बताता हूँ, तो आप बताइएगा। ये चीज पढ़ी है क्या? sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b इज इक्वल टू sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ये फॉर्मूला पढ़ा है? ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है? याद नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। आई डोंट नो पढ़ा होगा कि नहीं, वो शायद पढ़ा भी दिया होगा, लेकिन आप लोगों को याद नहीं होगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, 2 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज। तो ये जो आइडेंटिटी जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट
है ना, और सब लोगों को ये आइडेंटिटी पता नहीं रहती है और उसको यूज नहीं करते हैं, ऑल्दो इट इज गिवन इन योर आर.डी. शर्मा बुक, है ना। तो हेडिंग डालिए, है ना, 2 important identities. You might be knowing that trigonometry is one of the most important chapter. Class 12th math, 50% is made up of trigonometry. तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में वीक हैं तो आप सोच लीजिए कि 12th में आधा तो वैसे ही चला गया, है ना। So that's how it is very much important to study class 11th trigonometry very nicely, so that 12th में ज्यादा दिक्कत ना हो, सारे फॉर्मूलेस वगैरह पता हो। ठीक है, हेडिंग डालिए। कहीं पर भी किसी को कोई डाउट आता है, कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स, यू कैन आस्क, है ना, और यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन आल्सो, व्हाटएवर वे यू आर कंफर्टेबल। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज कहाँ है? हाँ, जस्ट अ सेकंड, हो गया। ओके, लिखिए 2 important आइडेंटिटीज, तो ये आपको आगे काम आएगा। तो 2 important आइडेंटिटीज क्या है? पहला है sin a plus b into sin a minus b is equals to sin square a minus sin square b। कुछ कैसा है, ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला a plus b into a minus b is equals to a square minus b square। तो एग्जैक्टली वो तो नहीं है, लेकिन उस जैसा कुछ दिख रहा है, तो याद करना आसान है ना। और सेकंड वाला है यही चीज cos में, cos a plus b into cos a minus b is equals to cos square a minus cos square b आना चाहिए, लेकिन फॉर्मूले में आता है sin square b, और इसी ट्विस्ट की वजह से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सेकंड वाला फॉर्मूला प्रूफ देख लेते हैं थोड़ा कैसे प्रूफ किया है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमने प्रूफ करने के लिए कोशिश किया, ठीक है। तो इसमें क्या किया, sin a plus b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस b का फॉर्मूला लगाया, sin a cos b माइनस cos a sin b। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सम में लिखा हुआ है और ये डिफरेंस में लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, साइन स्क्वायर नहीं, इसको एक काम करते हैं, ऐसे भी आंसर आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस और बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस लगा के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या किया, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, सब कुछ साइन में कर रहे हैं, और इस कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर बी। तो कितना आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस sin square a into sin square b. So although proof is not important to remember, it is important to know that how we have done it. So this is your answer. So sin square a minus sin square b. Similar way आप cos a plus b और cos a minus b का फॉर्मूला ओपन करेंगे और वहां पर वैल्यूज रखेंगे, तो ये भी आपको मिल जाएगा cos square a minus sin square b। ठीक है, तो याद करना है, इसको इम्पोर्टेंट है, बाकी इसका प्रूफ याद नहीं रहता है, या फिर आप इसको वहां पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, प्रूफ अपने आराम से कर सकते हैं, कई तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द वे टू प्रूव इट, है ना। यू कैन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 एंड यू कैन यूज द फॉर्मूला फॉर 2 sin a sin b, and below you can use the formula 2 cos a cos b, so that will also give the answer immediately. इसका एडवांटेज क्या है, so you can write it down, question will write, question is prove that, है ना। So इसका एडवांटेज क्या है, सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आपके नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा लेंदी होंगे, है ना। इफ यू नो दिस फॉर्मूला एंड यू अप्लाई दिस फॉर्मूलास, देन इट मे बिकम वेरी शॉर्ट, है ना, एंड यू कैन गेट द आंसर वेरी इजीली, है ना।
without using much calculation. So for example, a question is prove that tan of a plus b divided by cot of a minus b is equals to tan a plus b cot a minus b is equals to sin square a minus sin square b divided by cos square a minus sin square b. ये प्रूफ करना है. So there are many ways to prove, है ना. You can solve LHS and you can get the RHS, or you can solve RHS and you can get the LHS, or you can solve both of them and get the same conclusion. These are the three ways. And fourth way is you can start from some identity and bring the question as it is. So these four ways are there. तो इसमें generally we'll try to solve from the second way. तो इसमें क्या किया? We are solving from RHS. तो RHS क्या दिया हुआ है? तो sin square a minus sin square b divided by cos square a minus sin square b. तो जो दो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखे हुए हैं, you can use it in both the direction. अगर LHS दिया हुआ तो RHS लिख सकते हैं, और अगर RHS दिया हुआ है तो LHS लिख सकते हैं. तो इस केस में आप देखेंगे RHS दिया हुआ है दोनों में. तो sin square a minus sin square b can be written sin a plus b into sin a minus b, and cos square a minus sin square b, this can be written cos a plus b into cos a minus b. अब ध्यान से देखिए, ये sin अपॉन cos मिलके क्या बना देंगे ऊपर tan a plus b, और ये sin a minus b इसके नीचे लेके जाइएगा तो cos अपॉन sin यहाँ पर भी क्या बन जाएगा tan a cot a minus b, है ना. उसके नीचे लेके जाएंगे तो cos अपॉन sin हो जाएगा, तो cot a minus b which is equals to LHS. तो देखिए एक दो लाइन में इसका आंसर आ गया. ठीक है, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है कि sin a plus b into sin a minus b is equals to sin square a minus sin square b, and cos a plus b into cos a minus b is equals to cos square a minus sin square b. इस ट्विस्ट को याद रखिएगा, है ना. कई बार स्टूडेंट इसको ऐसे याद कर लेते हैं cos square a minus cos square b. This is wrong, है ना. So this is not cos square a minus cos square b, but it is cos square a minus sin square b, है ना. Related to the same concept, we have another question is proof that sin square 6x minus sin square 4x, this is equals to sin 2x into sin 10x. Try करिए. And another question with a similar concept, cos square 2x minus cos square 6x is equals to sin 4x into sin 8x. करिए दोनों क्वेश्चन. Let's say this is second question and third question. Done. Very good. Both are done. Third one करिए. डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है ना. Yes, very good. So from here we can see LHS, and if we try to solve LHS, so this is written sin square a minus sin square b. So this will be sin a plus b, means 6x plus 4x, and sin a minus b, 6x minus 4x. तो देखिए ये आंसर लिखा हुआ आपका sin 10x and sin 2x, which is RHS. Similarly यहाँ पर भी LHS सॉल्व किया, तो LHS सॉल्व करेंगे यहाँ पर cos square a minus cos square b. तो मैंने कुछ गलत लिखा है, cos square 2x और cos square 6x. हाँ सही लिखा हुआ है. तो cos square 2x minus cos square 6x. तो इसमें तो कोई फॉर्मूला है नहीं. cos square a minus sin square b होना चाहिए. तो देखो इसको क्या करते हैं हम, इसको लिख दिया 1 minus sin square 2x, ठीक है, और इसको लिख दिया 1 minus sin square 6x. ब्रैकेट ओपन कर दिया, 1 minus sin square 2x और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 plus sin square 6x and +1 -1 will get cancelled.
साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो साइन 6x प्लस 2x एंड साइन 6x minus 2x. So this is your answer. 6 plus 2 sin 8x, 6 minus 2 sin 2x, 4x. I also till here everything is clear. Just raise your hand. How many of you understood this formula and the application of this and these two questions? Just raise your hand so that I'll come to know how many of you got it, everything. अभिषेक, कुणाल, रुद्राक्ष तो कर लिए। ये कौन है? बहुत बढ़िया, कृतुजा। ओके, अभिषेक समझ में आया बेटा? अभिषेक और कुणाल, दूसरे है ना अभिषेक चौबे, उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो हैंड रेस करना था आपको। चलिए ठीक है। कुणाल, कुछ पूछना है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो these are two important entities which can be used. Next we'll come to the formulae. हमारे पास ऊपर वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला है। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कंफर्टेबल लगे। We'll study one more formula, important formula, which can be used directly. लिखिए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। कन्वर्टिंग, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज में ही बात कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में आपने प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना सीख लिया, उसके जो भी फॉर्मूले हैं। अभी सम को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो देखने वाले हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। ओके, लिखिए, कन्वर्टिंग सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो हर फॉर्मूले का अपना एडवांटेज है ना। और एडवांटेज कब पता चलेगा? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन यू विल कम टू नो दैट व्हाई वी आर यूजिंग पर्टिकुलर फॉर्मूला और व्हाई वी आर गिवन विद द पर्टिकुलर फॉर्मूला। सो बिकॉज समवेयर क्या होता है ना, कभी-कभी सम की चीज को अगर आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गए तो बहुत आसान कैलकुलेशन होता है। आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर प्लस ab एंड b स्क्वायर प्लस ab। आपको ये सॉल्व करना है। तो देखिए, ऊपर प्लस में है और नीचे भी प्लस में है, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता है ना। कोई बोले यहाँ सर ab से ab उड़ा दे, नहीं हो सकता ऐसे। ठीक है, तो अगर किसी तरह से दिमाग लगा के मैंने इस सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो कर सकते हैं। देखो a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a प्लस बी। अब देखो बीच में क्या साइन आ गया, मल्टीप्लीकेशन का, है ना। सिमिलरली यहाँ से b कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, b प्लस a। तो देखो ये चीज कट गई, है ना। तो पर्पस यही है, हम सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? सो दैट व्हेन वी हैव अ न्यूमरेटर एंड व्हेन वी हैव अ डिनोमिनेटर, है ना, and we can convert all the sum and difference into product, then we can cancel some of the functions, है ना, and that will make our questions
a bit more easier to solve. So that is the purpose why we are converting sum or difference into product, so that we can cancel out some of the terms to make our question more simple. So what formulas we are supposed to use to convert the sum into product, so that we are going to see. So these formulas are specially mentioned as C and D formula. C and D formula. तो इन लिखते जाइएगा ना. Why C and D formula? So that it becomes easy to remember. And there is no other something, nothing hack or nothing trick like that. But it is a way to remember. That's how it is called C and D formula. तो अभी तक आपने सारे फॉर्मूले किस में देखे हैं? 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, है ना? A और B में देखा है सब कुछ, है ना? C D में तो कभी गए नहीं, है? तो एक यूनिकनेस लाने के लिए ये फॉर्मूले यूज किए गए. तो पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर उसके प्रूफ देखेंगे कि कैसे किया गया है. ठीक है. So these are the formulas. First formula, 4 formulas we have. Sin C plus sin D. This is equals to 2 sin, note करते जाइएगा ना, C plus D by 2 cos C minus D by 2. These are very, very important formulas. Sin C minus sin D is equals to 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2. ठीक है. Cos C plus cos D, 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. Cos C minus cos D, 2 sin C plus D by 2 sin D minus C by 2. देखिए यहाँ पर लास्ट में ट्विस्ट है, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है ना. और इसी फॉर्मूले को एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस कॉमन लेके बाहर लाएंगे तो -2 sin C plus D by 2 sin C minus D by 2. So these are the 4 formulas which we are supposed to memorize. And out of all these 4 formulas, the 4th formula is the most important one. Why it is important? Because it is not ordinary. It is something extraordinary. It's looking different. So that's how it is important. So what is the difference that need to be noticed is sin C plus D by 2 sin D minus C by 2. Sin D minus C by 2. So either you make it sin D minus C by 2, or what we can do is we need to keep a minus outside, and then inside all C plus D by 2 C minus D by 2 in the normal sense. Okay, so how we have got these formulas? So we'll see the proof of first one. From that you will get the idea of all others. देखिए, it's very simple. You have learned this formula. What formula? Sin A plus B plus sin A minus B. Can anyone switch on the mic and tell me what is the formula for this, if it is not a problem? Yes, Abhishek. आप जब से हैंड रेज किए क्या? Anyone, what is the formula for sin A plus B into sin A minus B? Comment section में लिखना है शायद. याद कर लीजिए फॉर्मूला, है ना. फॉर्मूलाज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. हाँ, तो किसी का आंसर आ गया. रुद्राक्ष. 2 sin A cos B. ठीक है. ओके. हाँ, ये तो गड़बड़ हो गया है. अभिषेक, sin 2A minus sin 2B B थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. थोड़ा सा नहीं, ज्यादा सा गड़बड़ हो गया. कोई बात नहीं, याद करिए, याद हो जाएगा. बहुत ही सिंपल है. तो कितना होता है? ये होता है 2 sin A cos B. ठीक है, 2 sin A cos B. तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. sin A plus B का फॉर्मूला ओपन करेंगे, sin A minus B का फॉर्मूला ओपन करेंगे, आ जाएगा. यहाँ पर क्या किया हमने? कुछ सब्स्टिट्यूशन किया. क्या? A plus B को C मान लिया और A minus B को क्या मान लिया? D मान लिया. तो जब आप ऐसा मानेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? sin C plus sin D बन जाएगा. तो जब ऐसा किया आपने तो इसको ऐड कर दो.
तो 2a इज इक्वल टू c प्लस डी आ गया, तो एंगल a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c प्लस डी बाई 2। तो देखो राइट हैंड साइड पर a की जगह क्या रख देंगे, c प्लस डी बाई 2। एंड सिमिलरली व्हेन विल सब्ट्रैक्ट इट, a विल गेट कैंसिल और वहां से b की वैल्यू आएगी c माइनस डी बाई 2। यहाँ से कितना आ जाएगा, cos c माइनस डी बाई 2। तो ऊपर जो फॉर्मूले आपने लिखे हुए थे उसी का ट्रांसफॉर्मेशन काइंड ऑफ है ना। तो साइन सी ऐसा ही हमें हर जगह पर करना है। बीच में क्या कर देंगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस साइन आ जाएगा। बाकी अंदर हर जगह ए और बी पर क्या दिखाई देगा, c प्लस डी बाई 2 एंड c माइनस डी बाई 2। सो दिस इज अ प्रूफ फॉर दिस, है ना, which is not at all important in the sense because it is never asked in the question in the exams, है ना, but we need to know because this is very simple, and these 4 things we have to remember and we'll try to solve questions based on these. Should we start? So from the basic question we will start. The question is, convert the following into product. तो पहले ये देख लें कि फॉर्मूला लगाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। So in the first question is sin 4 theta plus sin 2 theta। करिए, आपको ही करना है। sin 6 theta माइनस sin 2 theta, ये 2 क्वेश्चन करिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। यस, हो गया। तो चेक कर लीजिए, इसका आंसर आएगा साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे ना, यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला उसके लिए याद होना चाहिए, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। So this will give 2 sin 4 plus 2 6 by 2 3 theta cos 4 minus 2 2 theta by 2 theta. This is the answer. Similarly here 2 cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2. So this will give 2 cos 4 theta and sin 6 minus 2 4 by 2 2 theta. So these are the answer, है ना। So इस तरह का नहीं आएगा एग्जाम में, just to practice we have done it. So the question is, next question, find नहीं, proof that PT means proof that cos 18 degree minus sin 18 degree is equals to √2 sin 27 डिग्री। ट्राई करिए, जिसका आंसर आ जाए हैंड रेज करिए। अभी कोई सोचेगा सर इसमें फॉर्मूला कैसे लगा दें, ये तो साइन सी और कॉस सी माइनस साइन डी है, कॉस और साइन को लेकर तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, है ना। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
तो साइन you can convert into cos, yeah, or either you can convert cos into sin, then we can use the formula and we will get the answer. Try it. आया किसी का? हैंड रेस कर दीजिएगा. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करिए, आ जाएगा. देखिए देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा. तो दिस इज cos 18, we'll write it as it is, cos 18 minus this sin inside 18. Mathematically we can write it as 90 minus 72. LHS we are trying to solve. So this is cos 18 and sin 90 minus theta is cos theta. So this comes as cos 72 degree. Now here we can use the formula for cos c minus cos t. So the formula says is cos c minus cos t. Last wala formula minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. So this is minus 2 sin. ये देखिए कितना आएगा, 18 plus 72 that is 90 और 90 by 2 it is 45 sin 18 minus 72, how much it is? 72 minus 18, 72 minus 20, 60 degree. (54) sin 54 upon 2. ओके, और माइनस साइन आएगा क्योंकि स्मॉल में से ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना, 18 minus 72. So minus 2 sin 45. Sin 45 value we can keep it here. This is 1 upon root 2. And sin this will become minus 27. So root 2 से 2 cancel हो जाएगा root 2 times. I hope so. There is no confusion in this because 2 by root 2 we are calculating. So 2 we can write root 2 whole square and 1 root 2 will get cancelled, so we'll get the root 2 outside. Root 2 minus and sin minus theta is also minus sin theta. So the 2 minus will come out. So that will become plus and sin 27 degree. So this is your RHS. So this is how we are supposed to do. And we are supposed to use sin C plus sin D and sin C minus sin D formula. Now some more questions which are very frequently you will find in your NCERT book. Prove that the main purpose for which we were doing it. First question is sin 5a minus sin 3a. अभी फॉर्मूले याद नहीं है तो उसको देख के कर सकते हैं. cos 5a minus cos 3a. This we have to prove is equals to tan a. करिए, try करिए. We have to solve LHS. LHS numerator we have to use one formula, denominator we have to use one formula, and then we'll cancel out the numerator denominators. We'll get the answer as tan. Right?
जिसका आ जाए हैंड रेज करिएगा, थोड़ा पेशेंस के साथ फॉर्मूला लगाइए, आ जाएगा। आया किसी का आंसर? देखिए कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, है ना, उसके बाद आगे आप करिएगा। तो साइन सी माइनस साइन डी, है ना, कौन सा फॉर्मूला है, ऊपर देखिए, साइन सी माइनस साइन डी, दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये लग जाएगा, तो इसको लगा दिया, तो कितना आ जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, एंड साइन c माइनस डी बाई 2, LHS सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय cos c माइनस cos d, यहां पर लास्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, -2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है। अब यहां से देखिए साइन 5a माइनस 3 है, साइन 5a माइनस 3 है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ओ मेरे ख्याल से आ नहीं रहा होगा आप लोग का आंसर, बीच में प्लस है, सॉरी बीच में प्लस है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा होगा, हाँ माय मिस्टेक। तो ऊपर तो फॉर्मूला सेम लगेगा, साइन 5a माइनस 3a बाई 2, है ना, और cos c प्लस cos d लगाएंगे तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, अब देखो 2 से 2, और ये cos 5a प्लस 3a, cos 5a प्लस 3a कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, साइन के साथ देखो 5a माइनस 3a 2a एंड 2a बाई 2 a आ गया, है ना, और 5a माइनस 3a 2a, 2a बाई 2 कितना आ गया, a आ गया, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, cos a, एंड sin a अपॉन cos a tan a, है ना। So these are the simplest questions which we can have based on these formulas, these 4 formulas, है ना। Similar type of questions we have, now this you can solve easily, sin a plus sin 3a upon cos a plus cos 3a, this we have to prove equals to tan 2a, करिए ट्राई करिए, अब आ जाएगा ये क्वेश्चन सही लिखा है मैंने।
जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा ऑडियो कुछ दिक्कत हो गया. Is my voice coming clearly? Yes, it is. Okay. So many of you could solve it. Rudraksh and Krutuja. Okay. Other students, they are able to make some sense from it. फॉर्मूले सामने रखिए ना, और फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2. देखो 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, तो साइन अपॉन कॉस, सेम एंगल लिखा हुआ tan a प्लस 3a बाई 2 मतलब 2a. ये आंसर है. देखो एक लाइन का आंसर है. नोट कर लीजिए, अगर नहीं कर पाए समझ लीजिए उसको. नेक्स्ट प्रूफ करना है, लिखिए. cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय sin 17x minus sin 3x. This we have to prove is equals to minus sin 2x divided by cos 10x. करिए. जिसका हो जाए हैंड रेस कर सकते हैं. बहुत बढ़िया. कुछ गलत लग रहा है. लेट मी चेक आउट. cos 9x cos 5x sin 17x minus sin 3x minus sin 2x अपॉन cos 10x. सही तो लिखा हुआ है सर. पाई वही है. चलिए हम करते हैं. देखिए तो cos c माइनस cos d. डन. बहुत बढ़िया. देखिए किसी स्टूडेंट ने कर लिया तो मतलब सही है. ओके. तो ओके लेट्स सी द कैलकुलेशन. सो यहां पर यूज करेंगे cos c माइनस cos d फॉर्मूला. माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d
by 2 है ना, LHS we are trying to solve, divided by sin C minus sin D फॉर्मूला, सो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला है, सो 2 cos C plus D by 2 and sin C minus D by 2, ठीक है, ये आ गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कितना बचेगा देखिए, साइन 9 प्लस 5 14, 14 by 2 7x, 7 आ रहा है, सही, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं पूरा सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है, साइन 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 एंड 4 by 2 2x डिवाइडेड बाय cos 17 plus 3 कितना हो जाएगा 20, 20 by 2 10x एंड sin 17 minus 3 कितना हो जाएगा 14 एंड 14 by 2 7, देखिए sin 7 से sin 7 कट गया एंड दिस इज अवर आंसर, माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय cos 10x। क्या गलत हो रहा था चेक करिए, और कहां गलत हो रहा था, रुद्राक्ष आपने गलत पढ़ा, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, 17 को 7, ओके ओके, चलिए, है ना, तो मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे कि ये फॉर्मूला कहां पर यूज होता है ना, वेयर वी कैन यूज दिस फॉर्मूलास, so especially when we have something in numerator and denominator and we cannot cancel here something, so we use these formulas so that we can convert these sum or differences into product, है ना, so that you can see in every questions we have cancelled something and that's how we have got the right hand side, okay, आगे बढ़ते हैं, some more questions we will try to solve on this, so now we have here, if you see in the left hand side, one numerator is there and denominator is there, है ना, numerator we have only two terms, है ना, cos C minus cos D, and denominator we have only two terms, so it was easy to apply the formula, है ना, so what else is the option, that is the only option that we can use direct formula. Now we have some questions in which we'll have three terms in both numerator and denominator, so how to do that, so the question is prove that cos 4x plus cos 3x plus cos 2x divided by sin 4x plus sin 3x plus sin 2x and we have to prove it is equals to cot 3x, ठीक है, करिए एक मिनट थोड़ा ट्राई करिए, सोचिए कि क्या किया जाए इसमें कि सॉल्व हो जाए, we don't have any formula like this cos C plus cos D plus cos E, है ना, no formula like that, तो वही फॉर्मूला जो हमारे पास है उसी को यूज कर सकते हैं cos C plus cos D, है ना, एंड नीचे sin C plus sin D, so you have to find out that which two cos you should take together, है ना, okay, so this one question I'll solve, you can also do it, but I'll solve so you'll get some idea that how to do such kind of questions, then next question I'll give you that you try to solve, okay, तो इसमें क्या करते हैं देखिए, तो हमें cos C और cos D वाला फॉर्मूला लगाना है, तो इसमें दो cos चूज करने हैं, है ना, तो कुछ इस तरह से यूज करिए, इस तरह से चूज करिए कि जो एंगल्स का सम और डिफरेंस है वो इवन है ना, एंगल्स का जो सम और डिफरेंस है वो क्या है, इवन है, इवन क्यों है, ताकि आप उसको 2 से डिवाइड कर पाओ, जनरली, है ना, विदाउट मच थिंकिंग, जो सबसे बड़ा एंगल होता है और जो सबसे छोटा एंगल होता है उसको साथ में ले लेते हैं, बस इतना याद रखिए, है ना, सबसे बड़े को सबसे छोटे के साथ, है ना, ताकि उसकी पार्टी स्ट्रांग हो जाए, और बाकी जो बचा हुआ है तो अपने आप रहेगा ही, है ना, तो वी कैन राइट इट एज cos 4x plus cos x and cos 3x is aside, then divided by same thing here, है ना,
जैसा हमने न्यूमरेटर में किया है सेम वे वी हैव टू डू इट इन द डिनोमिनेटर आल्सो. So sin 4x and sin 2x we can take together. So this will give sin 4x plus sin 2x and sin 3x separately. अभी क्या है, न्यूमरेटर में हम इस पार्ट में यूज कर सकते हैं cos c plus cos d formula. So I would recommend that if you can memorize all these formulas before next class. I don't know when we have, maybe tomorrow. So it would be very good. So cos c plus cos d. This is 2 cos c plus d by 2. 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2. And cos 3x as it is. उसमें अकेले बेचारे में क्या कैलकुलेशन करेंगे. अगर एक और cos होता साथ में तो उसको cos 3x के साथ लगा देते, है ना. बट वी हैव ओनली दिस. सो sin c plus sin d. तो sin c plus sin d क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला 2 sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2 and plus sin 3x. I hope so this is clear. Now I think so कुछ थोड़ा सा गलत कर दिया हमने. ये cos 2x था ना, ये 2 आएगा. 4x plus 2x 4x minus 2x. sin 2x वाला पार्ट सही. हाँ अब सही है. कितना आ जाएगा 2 cos. तो इसको कैलकुलेट करिए. 4 plus 2 6 6 by 2 3x and cos 4 minus 2 2x 2x by 2 x plus cos 3x divided by 2 sin 4x plus 2x again 6x by 2, this is 3x and cos of 4x minus 2x again this is 2x and divided by 2 this will give x and plus sin of 3x. Now after this always we will get something common in the numerator, and 99% questions and this type of questions where we have 3 terms in the numerator 3 terms in the denominator, है ना. If you use like this, है ना, you take the smallest angle with the largest one और फिर उसके साथ अगर आप सॉल्व करते हैं, so this will always be the case that something you will get common in both numerator and denominator. So we can see in the numerator cos 3x is common. So if I take cos 3x common, we'll get 2 cos x plus 1 and divided by again denominator sin 3x is common, then we'll get 2 cos x plus 1 and this factor is the same, so this will get cancelled and cos upon sin will give cot 3x. So this is our answer. I hope so this is clear, huh? So now with the help of the same on the same pattern we have one more question that you are supposed to solve. I'll write the question. You can note down this previous question. So the question is sin A plus sin 3A plus sin 5A plus sin 7 divided by same angles in cos A, cos 3A, cos 5A, cos 7A, and this we have to prove is equals to tan 4A. Try करिए. This is another easy question actually, है ना. थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है but actually it is easy. So can someone tell me कि किस किस पेयर को साथ में लेंगे अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं. साइन ए के साथ क्या ले लें, बताइए कमेंट सेक्शन में. साइन ए के साथ क्या ले लें. सेवन है ना. तो साइन ए के साथ साइन 7 ए ले लीजिए, है ना. तो इसको एक साथ लिख लिया साइन ए प्लस साइन 7 ए. तो इसमें लगा देंगे फॉर्मूला. बाकी जो बचा हुआ है उसको साथ में लेना पड़ेगा. साइन 3A एंड साइन 5A.
ओके, डिवाइडेड बाय, तो जैसा न्यूमरेटर में किया वैसे ही डिनोमिनेटर में करना है, कोई खास नहीं। तो cos a cos 7a को साथ में ले लीजिए एंड cos 3a cos 5a को साथ में ले लीजिए। अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या आंसर आ रहा है, करिए। किसी का आंसर आता है तो हैंड रेस करिए। आया किसी का? लिटिल लेंदी है ना, इसमें आपको 6 टाइम्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। किसी का आता है तो हैंड रेस करिएगा। वेरी गुड अभिषेक यादव, गुड। आया रुद्राक्ष, क्या नाम आपका? रुद्राक्षी नाम है ना? रुद्राक्ष समुद्रे, ओके हो गया, वेरी गुड। गार्गी, वेरी गुड। ऋतुजा, के साइलेंट है क्या आपके नाम में? शायद होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन इट, सो मींस दे गॉट द कॉन्सेप्ट दैट where we are supposed to use this formula, है ना, and how we are supposed to use that. Just for some other students, I'll explain it once. Sin c plus sin d, so this will become 2 sin
So a plus 7a, 8a, 8a by 2, 4a. Cos c minus cos d. So a minus 7a minus 6a by 2 minus 3a. तो ये एक बार फॉर्मूला लगा दिया, यहां पर लगा दिया 2 sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2. ठीक है, 3a minus 5a minus 2a by 2. Cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2, 4a. Cos c minus d minus 6a by 2 minus 3a plus cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2, 4a. Cos c minus d, 3a minus 5a minus 2a by 2 minus a. तो जैसा मैंने बताया था यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो देखिए ये sin 4a कॉमन दिख रहा है, तो 2 sin 4a we take common, so cos minus theta gives cos theta, sin minus theta gives minus sin theta, minus sin divided by, यहाँ से भी 2 cos 4a कॉमन, 2 cos 4a कॉमन, so cos minus theta cos theta, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहां से cos होगा, cos माइनस है ना, sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. Okay, so again here we'll get plus cos a है ना, and denominator also cos minus theta cos theta. So this term will get cancelled, 2 and 2 will get cancelled, and we have RHS as tan 4a है ना. Very good. Okay. तो अभी इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिख जाएंगे, and you can very easily solve these questions. We have another very amazing question. Question is, लिखिए, if sin theta is equals to n times sin theta plus 2 alpha, this is given. Prove that tan theta plus alpha is equals to 1 plus n upon 1 minus n multiplied by tan alpha. This is the question. Here we'll learn a new formula. So see how to do it. You have 1 minute, you can try. Then I'll explain how to do it. So what homework should I give you? अभी next class कब है? So next class for 11th. I think so we have class now on Saturday. Hello? Saturday we have class. So for you, the homework can be trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एक्सरसाइजेस अभी तक लगाई हैं, नहीं लगाई हैं? एक भी नहीं लगाई. This is 3.1 exercise. I think so, related to angles. 3.1 लगा लिया है क्या? थ्री पॉइंट टू तक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. 3.2 तक लगा लिया. Okay, then it's very good. Now we have 3.3 exercise. So this I'll give homework. Okay. So this will be your homework. ठीक है, देखिए तो होमवर्क लिख लीजिएगा ना. होमवर्क आपका है NCERT 3.3 exercise. ठीक है, not whole exercise, you will not be able to solve it now because we need to study more. From question number 1 to
आप लोगों ने सारा वो सब पढ़ा हुआ है ना, किस तरह से अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में कैलकुलेट करता है, पढ़ा हुआ 1 से लेकर 22 तक, 1 to 22. These questions you are supposed to solve. And today is Wednesday, Thursday, Friday. We'll discuss on Saturday. So whatever doubts you will have, we'll clear that, and then we'll go ahead with the multiple angles. Okay. So see how to do this question. So there is a trick involved in this. So you have to see this expression, what you are supposed to prove. So this is 1 plus n upon 1 minus n. This we are supposed to create. How to create it? So have you studied componendo and dividendo? Have you studied it in class? Componendo, dividendo. Just let me know in the comment section whether you have studied this, any rule with this name. No. Okay. I'll tell you the rule. So you can write it down. You can write it down. This is an important rule which is directly not given anywhere, but actually it is in class 9th. In class 9th, there 10th also. Generally, we teach there. So what component of dividend rule says, for example, if we have a upon b is equals to c upon d. These are two fractions. One fraction is in left hand side, one fraction is in right hand side. So if we use component of dividend rule, what we have to do is we can make, अगर ये दोनों fraction equal है तो a plus b upon a minus b. तो यहाँ पर क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, यहाँ से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया. तो जो लेफ्ट हैंड साइड किया है सेम पैटर्न वी हैव टू डू इट राइट साइड. So if this thing is correct, this will also be correct. है ना? We can do it in any way. We can write b minus a upon b plus a. ठीक है? तो राइट हैंड साइड भी क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट किया ना, तो d minus c upon d plus a. This will be equals to this. So this is also correct. है ना? For example, let's say 1 upon 2 is equals to 2 upon 4. So mathematically they are equal. So if we apply this, so 1 plus 2 and 1 minus 2, will it be equals to 2 plus 4 upon 2 minus 4? Yes. So we can check it here. 3 plus 1, 3 upon minus 1, and this is 4 plus 2, 6 upon minus 2. So this also comes minus 3 and this also comes minus 3. This is called componendo and dividendo rule. So ये रूल कहाँ लगता है, जहां LHS में एक फ्रैक्शन है और RHS में भी एक फ्रैक्शन है. तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल लगा के आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने यही चीज देखी. यहाँ पर देखो क्या देखा, मुझे ऐसा देखा 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन. तो मुझे आइडिया लगा हो ना हो ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल से क्रिएट किया गया होगा. तो उसके लिए क्या चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एन चाहिए और 1 चाहिए. तो ऐसे ही बनाया मैंने. तो देखो यहां से n की वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 2 अल्फा. तो देखो n के डिनोमिनेटर में क्या है, आप है, तो यहां पर लगा दिया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल. तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल कैसे लगाया, इस तरह से लगाया जो यहां पर दिया हुआ है, 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन. तो कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस एन 1 plus n upon 1 minus n is equals to कितना आएगा. तो देखो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड किया, तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दो, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दो. है ना? अब यहाँ पर आप यूज कर सकते हो साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला. सो दिस विल गिव 2 साइन c plus d by 2 cos c minus d by 2 divided by sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2. कितना है देखिए, 1 plus n upon 1 minus n. 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन के अंदर क्या बचेगा देखो, थीटा
सही लिखा है ना? तो ओ छोटी सी मिस्टेक हो गई, थीटा की जगह अल्फा लिख दिया हमने बस। इसको सही कर लेते हैं, क्योंकि कट नहीं रहा था ना, इसलिए मुझे आइडिया लग गया। थीटा आएगा ये, थीटा 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 थीटा, तो कितना आएगा देखो ये। सो थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2, सो थीटा प्लस अल्फा बचेगा, है ना। कॉस थीटा से थीटा कट गया, कॉस 2 अल्फा से 2 से कट गया, तो कॉस अल्फा बचा, डिवाइडेड बाय कॉस, यहां पर भी कितना बचेगा, थीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पर कितना बचेगा, साइन, थीटा से थीटा कट जाएगा तो अल्फा, इतना आ गया। तो ये क्या बन गया आपका, tan थीटा प्लस अल्फा एंड कॉट अल्फा, और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा है, 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। तो जो हमें प्रूफ करना है, तो देखो उसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा प्लस अल्फा। तो यहां से बहुत आराम से बता सकते हैं हम, दैट tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, और कॉट अल्फा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan अल्फा। सो ये हमें प्रूफ करना था। आई होप सो दिस इज क्लियर फॉर यू, है ना। अब इसको क्या करें ताकि आपको दिखाई दे जाए। ओके जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं एक फ्रेम में कर देता हूँ। तो ये था आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल जो हमने पढ़ा, और उसको यूज करके ये हमने फॉर्मूला सॉल्व किया, देख लीजिए। ठीक है चलिए, तो फिर हम आज हम यही स्टॉप करेंगे, है ना। आपका जो होमवर्क है मैंने आपको बता दिया है ना, 3.3 एक्सरसाइज 1 से लेकर 20 तक, इसको लगा के लेके आइएगा, है ना। इसमें जो भी होमवर्क्स और जो भी डाउट्स होंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, होप सो क्लास वाज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर पाए, तो दैट्स गुड। ओके, थैंक यू वेरी मच, वेलकम वेलकम। अरे